Hello students, in previous part we have discussed about the water harvesting. Water harvesting. What do you understand by water harvesting? The techniques by which we can conserve the water resources, those are called water harvesting. And these water harvesting techniques in different regions are known as different names, such as Kuls in Himachal Pradesh, Kattas in Karnataka, Surangam in Kerala, Kandi Belt in Jammu Kashmir, Nadis and Khadim tank in the Rajasthan. These are the different methods, different techniques which are applied by the different people in different region of the India. Why the water harvesting system are applied? As we know that water is very precious resource or very important for us. All the activities of our daily life such as metabolic, bathing, washing, all are dependent on water. We can't do anything without water. Although the water is present on earth, nearly which cover the 70 to 75% the earth surface area, but this all water is not useful for us because only 1 to 2% water out of this is potable, that is drinkable. So we need to conserve the water resources, and the techniques by which we conserve the water, those are called water harvesting, such as Kuls in Himachal Pradesh. Kuls in Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश दैट इज ए हिली रीजन. अब इसके अंदर वाटर की सप्लाई के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर वाटर फॉर ऑल जो सभी को वाटर सप्लाई करवाते हैं, तो क्या करते हैं, सपोज दिस इज द वाटर रिसोर्सेज मींस यू कैन से दैट रिवर्स. रिवर से क्या कैनल्स निकाली जाती हैं, कैनल, और कैनल से हर एरिया के अंदर चैनल सिस्टम बनाया जाता है, नाली सिस्टम बनाया जाता है. तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वाटर सभी को अवेलेबल रहे, अपर लेवल से लोअर लेवल तक हर पीपल को वाटर अवेलेबल कराने का काम इनका होता है कॉन्ट्रैक्टर का. फर्स्टली दे फिल अप दिस चैनल, दीज आर द चैनल्स. चैनल मींस जो छोटी नालियां होती हैं, ये फिल अप द वाटर विद द चैनल, दे फिल अप द चैनल्स विद द वाटर. सपोज दिस इज द लास्ट टारगेट वेयर द वाटर टू बी सप्लाइड. तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले इस चैनल्स को वाटर से सप्लाई से फुल फिल अप कर लेते हैं. सबसे पहले वाटर को सप्लाई कहां किया जाता है, सबसे लास्ट पर्सन को, देन इसके बाद देन इस प्रकार से वाटर सप्लाई करते करते लास्ट में वाटर रिसोर्स की बात जो है, जो क्लोजर टू द वाटर रिसोर्स उनको सबसे लास्ट में मिलता है वाटर. लेकिन हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं तो पहले पानी क्लोजर को मिलता है, लास्ट वाला जो है उसको सबसे लास्ट में मिलता है. दिस इज द सिस्टम which was arranged in the Himachal Pradesh, and this system is known as Kuls. This is the water harvesting system. Next, what do you understand by dams? Dams क्या हैं and what are the advantages or disadvantages on making dams? You can say that useful or harmful, advantages or disadvantages, merits and demerits. Dams, these are the obstacle made in the river so that to stop the फ्लो ऑफ वाटर. नदियों के अंदर जब वाटर फ्लो करता है, वाटर के फ्लो को रोकने के लिए नदियों के बीच में जो ऑब्स्टेकल बाधा बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड डैम्स. देयर आर सम मेरिट्स, एडवांटेजेस और यूजफुल इफेक्ट ऑफ डैम्स. तो एडवांटेजेस ऑफ डैम्स यानी डैम्स के क्या लाभ हैं. फर्स्टली we can control flood on making dam. We can control floods on making
डैम्स, नदियों के ऊपर डैम बना करके हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड वन, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी while on making dams. We can produce electricity on making dams. And third one, water is available for irrigation. पानी जो खेतों में सिंचाई के लिए वो हमारे पास अवेलेबल एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाता है। Water is available for irrigation. These are the advantages, you can say that advantages, merits and useful effect of dams. And there is also the opposite function of the dams, means disadvantages, demerits and harmful effect of dams. Demerit कह सकते हैं और disadvantages. The disadvantages of dams. Firstly, to construct dam, there is need of huge or large land surface area. To construct dam, need large surface area. So we have to spoil our cultivated area, मतलब जो खेती योग्य जमीन है उसको खत्म करना पड़ेगा। Second one is dam is very costly. To make the dam is very costly technique. It is very costly. And third one, डैम बनाते हो, डैम के आसपास जो लेक झील बन जाती है तो वहां पर वाटर लॉन्ग टाइम तक स्टे रहता है, और वाटर यदि लॉन्ग टाइम तक किसी एरिया में स्टे रहता है तो वहां की सोयल की नेचर चेंज हो जाती है, दैट टर्न इनटू द एसिडिक इन नेचर. ऑन मेकिंग डैम्स द वाटर स्टे for a long time in an area which change the nature of the soil. उस एरिया के अंदर जो सोयल है उसकी नेचर चेंज हो जाएगी और कैसी हो जाएगी, एसिडिक, which may cause the acidic nature of the soil. And fourth one, you can say that while making dams there is need of, means जिस एरिया के अंदर डैम बनाया जाता है तो उस एरिया में जितने भी हैबिटेट होते हैं, whether they are for the living beings, means ह्यूमन बींग के भी हो सकते हैं, अदर किसी इंसेक्ट, they have to destroy, उन सभी हैबिटेट को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. तो वहां के जो लोग हैं जिस एरिया के अंदर डैम बनाए उनको रिहैबिलिटेशन, मतलब दूसरे स्थान पर उनको पुनर्वास करवाना पड़ेगा. While making dam, there is loss of habitat of the organisms. अब organisms के जो habitat है उनकी लॉस भी हो जाती है क्योंकि उस एरिया में डैम बनाने हैं. तो these are the merits, advantages and useful effect of dams, and these are demerit, disadvantages and harmful effect of making dam. While making dam there are two controversy will occur between the local people and the government. डैम बनाते समय दो मेन कंट्रोवर्सी मींस डिस्प्यूट रहा है लोकल पीपल के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में. कौन सा डैम, कौन सी नदी के ऊपर? टिहरी डैम ऑन गंगा रिवर एंड सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, विच इज आल्सो नोन एज नर्मदा बचाओ मूवमेंट. टिहरी डैम ऑन गंगा रिवर एंड सरदार सरोवर
dam on Narmada river. Although the dams are already constructed, ये डैम्स बनाए जाएंगे, but these are the two controversies between the local people and the government while making the construction the dam on these rivers. Clear? And the next topic is, as we have already discussed, non-renewable resources. The resources which we use once we can't use it again. यानी वो रिसोर्सेज जिनका प्रयोग हम एक बार कर लेते हैं उनका दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकता, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड स्टॉक, जिनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर about the non-renewable resources. These are the resources which, if we use once, we cannot use it again. यदि किसी भी रिसोर्सेज का हम एक बार यूज कर लें तो उसको दोबारा प्रयोग में, मतलब दोबारा यूज नहीं कर सकता. इस प्रकार के रिसोर्सेज को बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. व्हाई? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट. These resources are present in limited amount. For example, coal and petroleum. These are counted in non-renewable resources. Coal and petroleum, also known as fossil fuels. Question is, define fossil fuels. We know that the dead parts of plants and dead and decay parts of plants and animals are known as fossils, and the fuels which are obtained from these dead and decay parts known as fossil fuels. The fuels which obtained from the dead and decay parts of animals and plants, यानी डेड और डिके पार्ट्स एनिमल प्लांट को उसको बोलते हैं फॉसिल, और वो फ्यूल जो फॉसिल इन फॉसिल से प्रोड्यूस किया जाता है उसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. तो इसका एग्जांपल भी आप क्या देंगे? कोल एंड पेट्रोलियम. These are our non-renewable resources as well as also known as fossil fuels. The next one is how the coal and petroleum produce. कोल और पेट्रोलियम किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है? प्रोडक्शन ऑफ कोल. प्रोडक्शन कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोल जो है किस प्रकार से बना? एज वी नो दैट millions of years ago there were some plants and organisms which were present on land, means terrestrial. Millions years ago the plants and animals which were present
on land, or you can say that terrestrial, जो जमीन के ऊपर प्रेजेंट थे, they buried into the soil due to some natural phenomena, मीन्स कुछ ऐसी नेचुरल प्रोसेस हुई जिस प्रकार से वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटे, लैंडस्लाइड जमीन खिसक गई हो, या अर्थक्वेक, उसके कारण से कुछ नेचुरल फेनोमेना के कारण से दे बरीड, दफन हो गए, दब गए, किसके अंदर, सोइल के अंदर. द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ slowly changed, जिसके कारण से क्या हुआ कि अर्थ का जो टेम्परेचर प्रेशर था उसने क्या किया, इनको बदल दिया. किसको, जो प्लांट्स एनिमल सोइल के अंदर बरीड हो गए, मीन्स डेड पार्ट्स और डिके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स के. स्लोली चेंज दीज डेड एंड डिके पार्ट्स, dead and decay parts into coal. मतलब मिलियंस इस कोल और पेट्रोल को बनने में मिलियंस ईयर्स लगे हैं. ये नहीं कि हम इसको बार यूज कर लें तो दोबारा नहीं, दोबारा हो तो मिलियंस ईयर्स के बाद फिर दोबारा प्रोडक्शन होगा. सो दे आर काउंटेड इन, दे आर कैटेगराइज्ड इन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. एंड हाउ द कोल फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस. सच टाइप ऑफ प्रोसेस आल्सो can take place in the while the formation of petroleum. Formation of petroleum. Just the formation of petroleum process is also resembled to the coal, but they are present on land and they are present in water. Means aquatic plant or aquatic animals जो millions years ago water में present थे, ड्यू टू सम नेचुरल फेनोमेना दे बरीड इनटू द, यहां तो आपने क्या लिखा, ऑन लैंड, तो ये चेंज कर देंगे इन वाटर. सिर्फ लैंग्वेज सिमिलर रहेगी. मिलियंस ईयर्स अगो प्लांट्स एनिमल विच वर प्रेजेंट ऑन लैंड, यहां लैंड में किया था अपने कोल में, तो यहां कर देंगे प्रेजेंट इन वाटर. दे बरीड इनटू द सोइल, यहां आपने लिखा सोइल, तो इसमें वाटर में क्या है, स्लिट, इसको कहते हैं सिल्ट. जो वाटर के नीचे मिट्टी होती है, गाद बना देती है, तो उसको बोलते हैं सिल्ट. यदि वाटर वाले जो सब्सटेंस, वाटर वाले जो प्लांट एनिमल थे, दे बरीड इनटू द वाटर बिलो द सिल्ट, क्योंकि वाटर में रहने वाले थे तो सिल्ट मींस गाद में दब गए. और इसी कारण से कुछ नेचुरल फेनोमेना के कारण से दबे हैं. फिर अर्थ के टेम्परेचर और प्रेशर ने इसी को, इन्हीं चीजों को, जो डेड पार्ट्स और डिके पार्ट्स है प्लांट एनिमल के, जो सिल्ट के नीचे दब गए थे, उसको चेंज किसमें कर दिया, पेट्रोलियम में. मीन्स अर्थ पे रहने वाले बरीड इनटू द सॉइल, वाटर में रहने वाले, वाटर में पाए जाने वाले बरीड इनटू द सिल्ट. प्रोसेस वही होनी है मिलियंस ईयर्स के बाद. वो डेड पार्ट्स जो हैं, जो सोइल के नीचे दब गए थे या सिल्ट के नीचे दब गए थे, सोइल के नीचे दबे थे तो कोल में चेंज हो गए, और सिल्ट के नीचे दब गए थे तो वो पेट्रोलियम में चेंज. सो दीज आर द प्रोसेस बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम कैन टेक प्लेस. सो if we want to conserve these resources or maintain these resources for the long term, we need to use renewable resources rather than these non renewable resources. This chapter has been completed.